Welcome all. Today, I will discuss the concept of negotiation and the relevance of bargaining in a negotiation session. This whole presentation is divided into 8 parts, starting with learning objectives, then learning outcomes, the summary of ordinary dispute resolution, what is negotiation, the various stages of negotiation, bargaining and its relevance, and finally, conclusion. And this whole presentation ends with an acknowledgement. When I start with learning objectives, the first objective is to create an understanding amongst the audience about the knowledge and concept of negotiation. Negotiation होता क्या है, क्यों किया जाता है और जरूरत क्या है. Second is to identify or allow the parties or audience identify the difference between various parts of negotiation and bargaining. Third is how this bargaining will help in negotiation. हमें कौन सा bargaining यूज करना है, कौन सा नहीं करना है. It will again depend on the circumstances and facts of the case. Fourth is to know the potential and efficiency of integrative bargaining. जो ये bargaining होता है, integrative bargaining, it is also called collaborative bargaining. और इस bargaining का जो potential है वो काफी हद तक आपको amicable solution के पास पहुंचाता है. Finally, application. So after these learnings, the audience will be able to identify various stages and the process of negotiation. होते क्या हैं, कैसे start करते हैं negotiation, कैसे खत्म करते हैं, सब कुछ. Then coming to the outcomes, the first one is at the end of the presentation, the parties will be able to understand, the audience will be able to understand the basic concept of negotiation, how to use integrative bargaining, and they will be able to cultivate the art of effective bargaining, which is in turn an art of effective negotiation. And finally, the audience will be able to respect the needs and interests of the opposite party in a negotiation. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे what is alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution is, as I told you in the earlier lecture also, is an alternative to resolve the dispute amicably without approaching the court. जो कोई अगर विवाद हो जाता है, अगर आपके पास कोर्ट ऑप्शन है, तो उसके साथ साथ आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, मैकेनिज्म्स हैं, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं. सो इन इंडिया वी हैव different forums of ADR, starting with negotiation. नेगोशिएशन में क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, वो आपस में बिना किसी की मदद से अपने जो इंटरेस्ट का जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसको सुलझाती हैं, बट विदाउट एनी स्ट्रेंजर. या तो दो लॉयर्स हो सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है. इन मीडिएशन में भी नेगोशिएशन होता है पार्टीज के बीच में, लेकिन जो ये नेगोशिएशन होता है उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए एक मीडिएटर, एक थर्ड पार्टी काम करता है, हु इज कॉल्ड द मीडिएटर. जो नेगोशिएशन पार्टीज के बीच में ही हो रहा है, लेकिन उसको फैसिलिटेट एक मीडिएटर करता है. अब यहाँ पे जो मीडिएटर का रोल होता है वो ये रहता है कि वो आपको कभी भी कोई सुझाव नहीं देगा, कोई ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करेगा, वो सिर्फ आपके जो कम्युनिकेशन को स्मूथ करेगा. थर्ड इज कंसिलिएशन. इन कंसिलिएशन द रोल ऑफ मीडिएटर इज मोर इवेलुएटिव. मीडिएशन में क्या हो रहा था कि जो मीडिएटर था वो आपके डिस्प्यूट के बारे में आपको एडवाइस नहीं कर रहा था, बस आपके जो कम्युनिकेशन गैप था उसको फुलफिल कर रहा था. बट इन कंसिलिएशन जो कंसिलिएटर होता है वो इवेलुएटिव रोल में आ जाता है. वो फैसिलिटेट तो करता है, लेकिन साथ में आपको बताता भी है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करना चाहिए. बट इन मीडिएशन वो सिर्फ आपको वहां तक पहुंचाते हैं, सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं. नाउ इज आर्बिट्रेशन. जो नेगोशिएशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन है, ये सारे आपके कंसेंसुअल मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जहां आप अपनी विल से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं. लेकिन जो आर्बिट्रेशन है वो एक एजुडिकेटरी नेचर का है. दैट मीन्स देयर इज अ थर्ड अंपायर. एक अंपायर है बेसिकली जो आपके बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा. नाउ दिस आर्बिट्रेटर इज नॉट बाउंड बाय द सजेशन ऑफ द पार्टीज.
आपने देखा नेगोशिएशन में पार्टीज खुद डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रही हैं, मीडिएशन में पार्टीज खुद डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रही हैं, बस मीडिएटर थोड़ा उनको हेल्प कर रहा है कम्युनिकेशन करने में। कंसिलिएशन में पार्टीज खुद रिजॉल्व कर रही हैं डिस्प्यूट, और कंसिलिएशन थोड़ा सा एडवाइस कर रहा है। और कंसिलिएशन में भी जब तक पार्टीज नहीं मानती हैं तब तक वो सेटलमेंट नहीं बनता है। बट इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन, इवन इफ द पार्टीज आर नॉट अग्रीइंग टू द अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर, उसके बावजूद आपको आर्बिट्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रेटर है, जो थर्ड पार्टी है, वो अपने आपके लिए एक सेटलमेंट तय करता है। देन इज लोक अदालत। आपने सुना होगा दैट लोक अदालत संडे को है, सैटरडे को है, कोर्ट में है। तो लोक अदालत इज द पीपल्स कोर्ट विच इज scheduled मोस्टली ऑन संडेज एंड सैटरडेज। जब छुट्टी होती है तब कोर्ट के अंदर ही एक लोक अदालत लगाई जाती है। उसमें जो ट्रिवियल मैटर्स हैं, आपका अगर आपने हेलमेट नहीं पहना था उसका चालान है, एक जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके डिस्प्यूट्स हैं, जो छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। देन इज जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट एज अ नेम सजेस्ट, इट इज अ सेटलमेंट बाय अ जज। जो ये जज होता है जुडिशियल सेटलमेंट में, वो आपके मैटर का जज नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है। सो देयरफॉर इन अ जुडिशियल सेटलमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरा जज दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। So this was all about alternative dispute resolution and the various forms of ADR. अभी हम सिर्फ नेगोशिएशन को फोकस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हर एक मेथड में, हर एक फोरम में नेगोशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इट इज द कॉमन थ्रेड विच कनेक्ट्स मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत एंड जुडिशियल सेटलमेंट। तो जब तक पार्टीज कम्युनिकेट नहीं करेंगी, एडीआर का मतलब कुछ नहीं रहेगा। So it's better that we first need to understand what is negotiation. Then gradually we will move towards mediation, conciliation, arbitration, lok adalat, and then judicial settlement. एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, that under the CPC section 89, सिर्फ और सिर्फ जो नेगोशिएशन है वो रिकग्नाइज नहीं है। अदरवाइज अगर कोर्ट को लगता है कि आपका मैटर मीडिएशन सॉल्व हो सकता है तो आपको भेज सकते हैं मीडिएशन के लिए, या कोई और फोरम एक्सेप्ट नेगोशिएशन। सिर्फ नेगोशिएशन आपको खुद से करना है, कोर्ट आपको रेफर नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ अदर फोरम्स, mediation, conciliation, arbitration, lok adalat, and judicial settlement, it is the power of the court that it can send the parties to the dispute to these forums. Now, starting with negotiation, if we start with the definition of negotiation, it simply means it's a common means of securing one's expectation from the others. तो अगर दो लोगों के जो ओपिनियंस हैं या इंटरेस्ट में इतना गैप है तो उसको आपको कम करना है। जो गैप को आप कम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड negotiation. So you are trying to communicate to decrease the gap between the expectations of both the parties. It is a communication process. हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में that communication process includes verbal, non-verbal, silence, paralanguage. तो उन सबको यूज करके आप क्या करते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं, अपने रिलेशन को अच्छा करते हैं पहले, उसके बाद ही आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। सो इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर रैपो बिल्डिंग। इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट। हमने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट अगर विजिबल हो जाता है तो वो डिस्प्यूट के स्टेज में आ जाता है, और जब हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो इट इज फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इट इज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। जब तक पार्टीज नहीं चाहेंगी, पार्टीज नेगोशिएट नहीं करेंगी। इट्स ऑन द विल ऑफ द पार्टीज। इट्स नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। तो आपका ऐसा नहीं कि आज आप नेगोशिएट कर लिया और आपको एक बात से मानना पड़ेगा। इवन इफ यू डू नॉट अग्री, अगर आप खुद से अग्री करते हैं, ठीक है भाई, दो नेबर्स में बीच में लड़ाई हो जाती है, अब उन्होंने एक नेगोशिएशन कर लिया है कि हम ऐसे काम करेंगे, अगर उसके बावजूद वो नहीं चाहते हैं कि भाई ये एक सेटलमेंट बने रहे उनके बीच में, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड। बट यस, इन 90% ऑफ केसेस इट इज सीन कि अगर नेगोशिएशन अच्छे से हो जाए तो पार्टीज जो रिलेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो बाद तक चलते आते हैं। In the negotiation, parties retain control over the outcome and procedure, because negotiation सिर्फ parties के बीच में हो रहा है, जो दो disputants हैं उनके बीच में हो रहा है, तो पूरा प्रोसेस के पे कंट्रोल पार्टीज का है, आउटकम में भी कंट्रोल पार्टीज का है। एंड लास्टली, इन नेगोशिएशन वी लुक फॉर लॉन्ग एंड वाइड रेंजिंग सॉल्यूशंस एंड मैक्सिमाइजिंग जॉइंट गेन्स। हम देखते हैं कि म्यूचुअल, दोनों को म्यूचुअल
एडवांटेज मिले, दोनों को फायदा हो, जब म्यूचुअल ही डिसाइड किया गया हो. दिस इज अबाउट नेगोशिएशन. In order to understand negotiation, I will like to tell you a story. Once upon a time, there was a man. He was an electrician. He was an electric engineer. उसने क्या करा कि वो एक बेबी गोट को लेके आया. With time, this baby goat grew and got big horns. Now, one day, this person, this is X, who's an electric engineer, and he was knowing nothing about the goat. He wanted to put back this goat in the barn. तो उसको वो अपनी जो गोट थी उसको उसके घर डालना चाहता था. बट दिस एंड फॉर दिस व्हाट ही डिड, ही ग्रैब्ड द हॉर्न्स ऑफ द गोट एंड ट्राइड टू पुश इट बैक इन द बार्न. बट गोट ने क्या करा, इट रेजिस्टेड एंड ओवरथ्रू एक्स. And then he tried multiple times, but he failed. Then later on, he called his wife, that is Y, who gently held the beard of the goat. उसने सिर्फ उसकी जो दाढ़ी थी उसको सहलाया, and this goat went back to the barn. वो अपने घर चले गया. So what happened here? This wife, who was all the time with this goat, कि जब वो घर काम करने जाता था वो वही रहती थी उनके पास. She knew कि उनका सेंसिटिव पॉइंट क्या है. जो गोट है उसका सेंसिटिव पॉइंट था beard, not the horns. So negotiation is like an animal. Every negotiation is a different animal. आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएशन में पार्टीज क्या करने आई हैं, फैक्ट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं. उसके बाद ही आप नेगोशिएशन कर सकते हैं. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्मार्टेस्ट. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं सबसे स्मार्ट हूँ इसलिए मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ, या सबसे स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ. It is depends upon the situation, timing, and circumstances. तो हर एक negotiation different है. Every negotiation is a different animal, and we need to understand how it has to be done. So now for this, an important element is bargaining. And if you talk about negotiation phases, तो सबसे पहले होता है preparation, where you prepare. आप देखते हैं facts क्या है इस केस के, बैकग्राउंड क्या है उस केस का, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सेकेंड इज ओपनिंग. फिर आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, बिकॉज इट इज डन फॉर द रेपो बिल्डिंग. जब तक आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आप नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते. इसीलिए हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन पढ़ा. देन इज बार्गेनिंग. ना बार्गेनिंग का काम क्या है, जो गैप था उसको कम करना. आप दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी डिस्प्यूटेंट्स की, वो दोनों की ज्यादा होंगी. हमें उन एक्सपेक्टेशंस को कम करके एक म्यूचुअल अग्रीमेंट को बनाना है. एंड लास्टली इज क्लोजिंग, जहां पे आप एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, और नेगोशिएशन अगर आपका सक्सेस रहा तो जो आपका रिलेशन है वो मेंटेन रहता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज बार्गेनिंग. नाउ इफ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट बार्गेनिंग टेक्निक, दैट इज राइट्स बेस्ड बार्गेनिंग. नाउ दिस बार्गेनिंग टॉक्स अबाउट द कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बार्गेनिंग, जहां पे आप देखते हैं भी किसकी गलती थी, कौन सही था. अगर आप दो पार्टी नेगोशिएट करना चाहते हैं तो बस आप ये बोलेंगे कि भाई आप, फॉर एग्जाम्पल, कि दो बाइक्स कोलाइड हो जाती हैं, देयर इज अ कोलिजन बिटवीन टू बाइक्स. अब जो सही एक है रॉन्ग साइड से आया था और एक सही साइड से आया था. सो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि भाई आप गलत साइड से आए थे तो इसीलिए आप मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए. दिस इज राइट्स बेस्ड बार्गेनिंग. जो सही है वो गलत से कॉम्पनसेशन मांगता है. दिस इज कॉल्ड राइट बेस्ड. जब आप ब्लेम ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं कि भाई हाँ, ये गलत था तो इसको पैसा देना चाहिए, दिस इज कॉल्ड राइट्स बेस्ड बार्गेनिंग. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बार्गेनिंग. सेकेंड इज पोजिशनल बार्गेनिंग. नाउ इन पोजिशनल बार्गेनिंग आपके कुछ पोजिशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ सन एंड फादर. फादर को पता है कि भाई ये मेरा बेटा है तो मेरी बात मानेगा, और सन भाई बोल रहा है कि भाई मेरे फादर हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं जो जिद चाहता हूँ, जो मैं जिद किसी और के सामने नहीं कर सकता हूँ, वो जिद मैं इनके सामने कर सकता हूँ. तो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल बार्गेनिंग. जब अपनी पोजिशंस, एक की पोजिशन है फादर की, एक की है सन की, उनसे वो बार्गेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर ऑल्सो, अब एक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई मुझे 1 लाख दीजिए फॉर एग्जाम्पल. दूसरा बोलता है मुझे सिर्फ 65,000 दीजिए. दूसरा बोलता है मुझे 65,000 मैं ही सिर्फ 65,000 दे सकता हूँ. दैट मीन्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्यों 65,000 चाहिए, क्यों 65,000 दे सकते हो, या क्यों 1 लाख चाहिए. वो सिर्फ ये बात करते हैं भाई मैं बड़ा हूं तो मुझे आप 1 लाख दीजिए. और दूसरा बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप 65,000 दीजिए बस. सो इट इज ओनली अबाउट द पोजिशंस, नथिंग मोर देन दैट. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. नाउ इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी आपके पास
पाई है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में 1 लाख के बीच के अमाउंट के ऊपर नेगोशिएशन चल रहा है, तो आप बोलेंगे 50,000 आप रख लीजिए और 50,000 मैं रखूंगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जहाँ पे आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं पे आप बोलते हैं कि भाई मेरा ज्यादा खर्चा हुआ है तो मैं 60,000 रखूंगा, आप 40,000 रखिए। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, यू डिस्ट्रीब्यूट सिंपली। तो यहाँ पे होता है आपका ये बेसिकली, जब आप मॉनिटरी टर्म्स में बात करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग यूज करते हैं। देन वी हैव इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग। अभी तक हमने देखा कि भाई इनको पैसा चाहिए था, ये उनके फादर थे, ये उनका बेटा था, तो सब कुछ नेगो बार्गेनिंग उस पर डिपेंडेंट थी। इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग में आप देखते हैं कि भाई वो जो चाहिए आपको वो क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 भाइयों को 4 रूम दिए जाते हैं विच आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स सब इम्प्रॉपर हैं और अनइक्वल हैं, सारे सारे 4 रूम्स। तो अगर आप इस पे पोजिशनल बार्गेनिंग करेंगे तो क्या होगा, बड़ा भाई बोलेगा मुझे बड़ा रूम चाहिए, छोटा भाई का कोई से नहीं होगा बिकॉज उसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक है। अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग करते हैं, जब आप अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक एक रूम एक एक भाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, किसी को छोटा मिल जाएगा, किसी को बड़ा मिल जाएगा। इंटरेस्ट बेस्ड में क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट, भाई एक को अपने पढ़ाई करनी है तो उसको सुबह से उठना पड़ता है, तो उसको विंडो फेस्ड रूम चाहिए। तो ये आपने उससे पूछा क्यों चाहिए आपको, बड़े भाई ने बोला भाई मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है, तो इसलिए मुझे बड़ा रूम चाहिए। दिस इज इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि आपको क्यों चाहिए, and then accordingly you decide that okay, this will be the understanding amongst us, this will be the settlement. Then comes integrative bargaining, which is most important form of bargaining, also called as collaborative bargaining. यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे यू ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप सिर्फ 4 रूम्स को नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उसके अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बालकनी भी थी उस घर पे, तो आप देखेंगे भाई इस बालकनी को भी हम अगर यूज कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप बार्गेनिंग करते हैं कि ठीक है, आप मुझे छोटा रूम दे दीजिए, साथ में मुझे बालकनी दे दीजिए। दिस इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, व्हेन यू आर नॉट लिमिटिंग योरसेल्फ टू द ओनली थिंग्स यू हैव, यू ट्राई टू एक्सपेंड द पाई। जो भी आपके पास है उसको आप एक्सपेंड करते हैं, आप इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। So for these all bargaining, I would like to show you an illustration. हम आपको एक illustration दिखाऊंगा मैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी bargaining यूज करी गई है। So there was a story. There are two brothers who were fighting over a property left behind by his father. तो 2 भाई थे आपस में लड़ रहे हैं एक प्रॉपर्टी को लेके, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके फादर की प्रॉपर्टी है। तो उनके फादर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि भाई एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, लेकिन आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट आप लें। ठीक है, जो इसमें जो बड़ा भाई है, ही इज सो देयर इज बेसिकली देयर इज अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। द एल्डर ब्रदर इज मैरिड एंड इज टू एन आर्किटेक्ट, हैज 2 चिल्ड्रन एंड इज हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन। तो वो बिजनेसमैन है, उसके 2 बच्चे भी हैं, एक आर्किटेक्ट से शादी भी हुई हुई है। जब जो यंगर ब्रदर है, ही इज अनमैरिड एंड इज सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड द मदर, दे हैव अ मदर आल्सो हु इज स्टेइंग विद द यंगर ब्रदर। तो हमारे पास 2 फैमिलीज हो गई, एक है छोटा भाई उनकी मदर, दूसरा है बड़ा भाई उनकी वाइफ और 2 बच्चे। नाउ इफ वी ट्राई टू नाउ, दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली अ 2 फ्लोर बिल्डिंग, 2 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अब इनके बीच में डिस्प्यूट क्या हो रहा है, अब इफ यू सी अबाउट पोजिशनल बार्गेनिंग, the elder brother says, give me the ground floor, I am the elder one and deserve it. This is called positional bargaining, जब आप अपनी पोजीशन को यूज करते हैं। छोटा भाई बोलता है, I should get the ground floor since I take care of my parents and I deserve it. तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस बता रहे हैं और उसको लेके नेगोशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल बार्गेनिंग। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। Now the elder brother says, I want the ground floor because the value is more. Give me the difference of value and I will shift to the first floor. अब आप सिर्फ पैसे की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि भाई ठीक है आप रख लीजिए पर मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। ऐसे ही जो यंगर ब्रदर वो बोलता है, आई ऑल्सो वांट द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज द वैल्यू इज मोर, यू गिव मी द वैल्यू ऑफ द एंटायर फ्लोर, आई विल मूव आउट। ये बोलता है भाई आप मुझे डिफरेंस ही मत दीजिए,
आप मुझे पूरा पैसा दे दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। जब आप, जो आपके पास जो दो दो फ्लोर्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दी मॉनिटरी वैल्यू। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग, आई टोल्ड यू इन इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग हम क्या करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझते हैं, क्यों चाहिए, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो बड़ा भाई है वो बोलता है दैट माई चिल्ड्रन नीड स्पेस टू प्ले एंड माई वाइफ गोज आउट टू वर्क। मेरे जो बच्चे हैं वो खेलना चाहते हैं, मेरी वाइफ काम करती है, और इसीलिए मैं अपने जो बच्चे हैं उनको छोड़ नहीं सकता। अगर फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे तो मे भी गिर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे अनसेफ है ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, इसलिए मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए। बट जो बड़ा छोटा भाई है वो बोलता है यू नो योर मदर कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स, क्योंकि वो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती हैं, इसीलिए मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को आगे ला रहे हैं, बट फिर भी आपका जो नेगोशिएशन है वो पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे भी दोनों के पास इंटरेस्ट है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो कम है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग की बात की थी, यहाँ भी आपने देखा कि इन्होंने पैसे की बात करी लेकिन इनका नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा है। पोजिशनल बार्गेनिंग में फिर से इनके बीच में टसल है, बड़ा भाई और छोटे भाई में फिर भी एक लड़ाई रहती है। नाउ व्हाट दे डिड, दे ट्राई टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, और एक साथ में लिफ्ट कंस्ट्रक्ट कर दी। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, व्हेन दे ट्राई टू इंक्रीज द पाई, मैंने आपको बोला था दैट इन केस ऑफ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनसे आगे जाते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आप कोशिश करते हैं कि इसके इनोवेटिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया और एक लिफ्ट बना दिए। अब क्या हुआ इससे, so the younger brother, so now the wife of the elder brother says wow, I can go to work now without being worried for the kids, क्योंकि अब इनका काम पूरा हो गया है। इवन इफ दे आर लिविंग इन द फर्स्ट फ्लोर, इन्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सेकंड फ्लोर इनका पहले से बना हुआ है, अब वहां पे टेरेस नहीं है। नाउ दिस जो वाइफ है, जो इनकी जो मदर है, वो बोलती है कि भाई ठीक है, अब आपने जो एक्स्ट्रा फ्लोर है वो तो आपने किराए में चढ़ा दिया है, और उसका पैसा इनकी मदर को मिल रहा है। नाउ शी इज हैप्पी एंड शी इज नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब उन्हें पता है कि भाई ठीक है, मेरे पास एक फ्लोर है, उससे पैसा आ रहा है, तो मैं आराम से अपना इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियस को का खर्च कर सकती हूँ। अब जो बच्चे हैं उनका क्या हुआ, दे आर हैप्पी दैट देयर ग्रैंड मदर कैन कम अप एंड प्ले विद देम एनी टाइम, क्योंकि अब लिफ्ट बन गया है, वो रहती तो ग्राउंड फ्लोर में है लेकिन जब चाहे फर्स्ट फ्लोर में जा सकती है। बिकॉज ओनली हर्डर शी वॉज फेसिंग वॉज दैट शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स, बट नाउ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिफ्ट, जो उनका जो चढ़ने का दिक्कत था वो भी पूरा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। यहाँ पे सारे मेंबर्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में भी दोनों भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, लेकिन पेरेंट्स का, दैट इज मदर हेयर, बच्चों का और वाइफ का, इनके कोई इंटरेस्ट की बात नहीं की गई थी। When we talked about इंटरेस्ट बार्गेनिंग, वहां पे इंटरेस्ट तो देखा लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। When we talked about पोजिशनल बार्गेनिंग, उसके उस वक्त भी आपके जो और स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक मदर, फादर, चिल्ड्रन और एनी अदर मेंबर इन द फैमिली, उनके राइट्स की आप बात नहीं कर पाते हैं। So the negotiation which is based on integrative bargaining or called as collaborative bargaining will give you a better result. It will provide you a better amicable solution than the other forms of bargaining. So this is how we try to negotiate. So we need to understand this bargaining कि भाई bargaining अगर आपका करना चाहते हैं तो वो integrative bargaining होनी चाहिए, उसी के बाद ही आपका जो negotiation है वो successful रहेगा। So with this, I would like to conclude. So first thing is expect the unexpected. As I give you an example of that goat case. So every negotiation is different. It will depend on the facts, circumstances, people, and everything involved there. So everything has to be seen as per the circumstances. Always act, never react. अगर आपको लगता है कि भाई नेगोशिएशन में कुछ ऐसा पोजीशन आ गया है जहां पे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टॉप, स्टे काम एंड रीपोजिशन योरसेल्फ एंड देन कंटिन्यू।
ऐसा नहीं होगा कि भाई आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़े वक्त के लिए शांत होइए, दोबारा सोचिए कि और क्या हो सकता है, क्या इनोवेटिव आइडियाज में ला सकता हूँ। यू नीड टू यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। स्टडीज की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विच टॉक्स अबाउट स्टाइल, कि कौन से स्टाइल आपको यूज करना है, टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, एंड लास्टली इज द बार्गेनिंग, और यू कैन से फर्स्टली इज द बार्गेनिंग। अगर बार्गेनिंग के बारे में आपको पता है कि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग यूज करनी है, तो आपका जो नेगोशिएशन है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। सो यू नीड टू मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा आपके पास चॉइसेस होंगी, एंड देन यू कैन डिसाइड दैट which alternative to be followed. So through integrative bargaining, it is possible that you can have numerous number of alternatives. And lastly is negotiate as partners and not as opponents. Because मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, you need to build a rapport with the other person. So in a negotiation, rapport building is a crucial element along with the bargaining. So first, you need to build the rapport, and then you need to find out the innovative ideas and solutions. So with this, I would like to end this presentation. But lastly, I would like to acknowledge Delhi High Court Mediation and Conciliation Center, also called as Samadhan, for providing material for preparing this PPT. So thank you. See you again.